Let's now start the next unit, Unit 8, that is Small Business and Enterprises. So, under this unit, we are going to study about the meaning of small business, how do we define small business, and then we'll see classification of enterprises. How can we classify the different small business enterprises? We'll also study the nature of a small business, and then we'll see what role do they play in the economy of a country. So these small scale industries, how they contribute in building the economy of a country, that we'll have to see. Besides that, we'll also study the challenges, the problems which are faced by the small scale industries and the entrepreneurs. And then we'll see what schemes, what plans the government at the center and at state level they are offering to these small scale industries, and how are they promoting such startups. So that all we have to study in this unit. Besides that, we'll also study about entrepreneurship and intellectual property. So let's start the first lecture of this unit, that is about small business. So, small business, how can we define it? A small business is a business which operates on a small scale and requires less capital, less labor, and less machines. Such a business will be called a small business. Till now, we have studied different forms of organizations, and we know all such big organizations that we have been studying so far. They all require huge sum of capital. They require a big setup, very big setup, and it involves large funding. फंडिंग कैसे उसमें करना है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. उसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं फंडिंग के. बट इन दिस यूनिट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, दैट इज स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस. तो अभी स्मॉल बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए दैट हैज़ टू स्टार्ट एट इंडिविजुअल लेवल. कोई भी छोटे लेवल पर एक बिजनेस ऐसा सेटअप करना जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल ना लगे, बहुत ज़्यादा उसमें स्टाफ ना हो, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत ना हो, और बहुत उसका मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ ना हो. तो वो लाइक ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करके एक लाइक डोमेस्टिक लेवल पर एक कोई बिजनेस सेटअप करना, उस तरह के बिजनेस को हम कहेंगे स्मॉल बिजनेस. सो अ स्मॉल बिजनेस enterprise according to MSMED. What is MSMED? MSMED is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. So a small scale enterprise according to MSMED Act 2006 is defined as one where the investment in plant and machinery is more than 25 lakhs but does not exceed rupees 5 crore. सो 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करके हम कोई बिज़नेस जो सेटअप करते हैं, उस बिज़नेस को हम स्मॉल बिज़नेस कहेंगे एज पर द डेफिनेशन बाय MSMED. सो लेट्स नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस according to MSMED. How do they classify the enterprises in terms of the capital required? In terms of the capital required, the enterprises can be of two types. हमारे कोई भी business enterprise होती है that operates in two ways. It is either a manufacturing enterprise or it is a service enterprise. या तो हम goods produce करते हैं या service. So हमारी दो industries होती हैं, manufacturing industry and service industry. So these may be, both these type of enterprises may be of three types. They may be micro, small और medium. जो small business हैं वो enterprises तीन तरह की हो सकती हैं. हमारी मैन्युफैक्चरिंग enterprises भी थ्री टाइप्स की होंगी: माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग enterprises, small manufacturing enterprises and medium manufacturing enterprises. And in the similar way we can have service enterprises also classified into three: micro service enterprises, small service enterprises and
medium service enterprises. Now what is the difference? How do they differ from each other? That is in terms of the capital required to start such setups. तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं बिलो 25 लैक्स, कोई हम कुछ बिजनेस सेट करते हैं जिसमें 25 लाख से कम का हमारा इन्वेस्टमेंट आता है, दैट विल बी कॉल्ड अ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. And for starting a micro service enterprise, we require capital less than 10 lakhs. तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम कर रहे हैं तो वो सेटअप के लिए हमारा रिक्वायर्ड होगा 25 लाख से भी कम का इन्वेस्टमेंट होता है. सो दैट विल बी कंसिडर्ड अ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. और सर्विस एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा सेटअप जिसमें 10 लाख से भी कम का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट विल बी अ माइक्रो सर्विस एंटरप्राइज. देन more than 25 lakhs and less than 5 crores, that will be considered a small manufacturing enterprise. अभी हमने स्मॉल बिजनेस में भी MSMED की जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें यही था कि more than 25 lakhs and less than 5 crores, that gives a form of enterprise which we call as small business. So for us a manufacturing enterprise, we require a sum of more than 25 lakhs but less than 5 crores. So that is what gives rise to a small manufacturing enterprise. For a service enterprise, the sum has to be more than 10 lakhs and less than 2 crores. 10 lakhs तक अगर है तो वो तो हमारा माइक्रो एंटरप्राइज बनेगा, और 10 लाख से ज़्यादा लगाकर और 2 करोड़ से नीचे इसके बीच में अगर हमारा कोई सम यूज़ होता है एक बिजनेस सेटअप में, सो दैट विल गिव राइज टू अ स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज. देन कम्स मीडियम. For establishing a manufacturing enterprise, the sum which is more than 5 crores and less than 10 crores, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करके जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, that will be considered a medium enterprise. And in case of service enterprise, it will need a sum more than 2 crores and less than 5 crores. So this is the classification of enterprises. I hope you are now clear. You should know the range. ये 3 तरह की जो हमारी enterprises हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ये इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में ये अगर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है तो वो कहाँ पर लाई करेंगी, दैट शुड बी क्लियर इन योर हेड. ओके, नेक्स्ट कम्स विलेज इंडस्ट्री. स्मॉल बिजनेस में हमारे जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा विलेज इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री. दीज आर द टर्म्स विच वी ऑफन कम अक्रॉस when we talk about rural development. So village industry means any industry located in rural area in tiny sector which produces any goods or renders any service within or without the use of power, and in which the total fixed capital investment in land, building, plant and machinery per head of an artisan or a worker does not exceed rupees 50,000 or other such sum as specified by the central government from time to time. So village में क्या होता है, the artisans like potters, weavers, ये लोग थोड़ा सा सम करके, जिसको अभी जो उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो 50,000 इज द लिमिट दैट कैन बी स्पेंड बाय एन आर्टिसन, बाय अ विलेज पर्सन. इतने इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक अपना ऐसा सेटअप कर ले जिसमें लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करता है, दैट मे बी अ सर्विस, दैट मे बी अ गुड. तो ऐसा कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं विलेज इंडस्ट्री, राइट. सो इन जनरल हमारे रूरल एरियाज़ में विदाउट दैट मे यूज़ हम पावर का, जैसे हैंडलूम्स होते हैं, हैंडलूम्स में यूजुअली क्या होता है कि वो पावर का यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है, वो हाथ से चलाए जाते हैं. तो उस तरह का कोई सेटअप है जिसमें आप लोकली अवेलेबल, जहाँ पर आपको वो मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, कम कीमत पे अवेलेबल है, उसका यूज़ करके कुछ वीविंग करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो दैट विल ऑल कम अंडर विलेज इंडस्ट्री. या फिर जैसे पॉटर्स होते हैं, दे मेक नाइस आर्टिकल्स, उसमें भी कोई जो उनका पॉटर व्हील होता है उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती है. यूजिंग दैट
traditional equipment, they can make something which is of value, right? So that too will be under village industry. अभी इसकी लिमिट क्या है? अगर 50,000 से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका उस सेटअप को क्रिएट करने में, तो वो उसको विलेज इंडस्ट्री में हम नहीं डालेंगे. बट दिस लिमिट ये हमारी चेंज हो जाती है. मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स अ लिमिट लोअर देन दिस और हायर देन दिस, सो दैट इज़ वेरिएबल. बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ 50,000. So a village industry will require a sum not more than 50,000. All right, let's now see the types of rural industries. How many types of such rural industries we can have? All the village industries come under the following broad categories. वो कौन सी कैटेगरी हैं जिसमें हम रूरल इंडस्ट्रीज़ को डालेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़, जैगरी, जिसे आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो ये सब जो प्रोड्यूस होता है इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. शुगर इंडस्ट्रीज़ में जो केन शुगर के और प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जैगरी एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर देयर, उसको डोमेस्टिक लेवल पर शुगर इंडस्ट्री तो इज़ अ बिग फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, बट उसकी उसका जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके या फिर उसके जो रॉ मटेरियल हैं उसको यूज़ करके डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एंड दैट विल कम अंडर रूरल और विलेज इंडस्ट्री. ऑयल प्रोसेसिंग फ्रॉम ऑयल सीड्स, जो क्रशर्स होते हैं मैनुअल क्रशर्स और वो सब, वो भी एक विलेज इंडस्ट्री में आएगा. ऑयल सीड से ऑयल का प्रोडक्शन दैट कैन टेक प्लेस एट अ वेरी लार्ज स्केल इन लार्ज एंटरप्राइजेस, बट स्मॉल स्केल पर क्या होता है, ऑयल सीड से वो मैनुअल क्रशर से जो ऑयल निकालने का एक प्रोसेस होता है, उस तरह के सेटअप को हम विलेज इंडस्ट्री में कंसिडर करेंगे. पिकल्स, विच इज़ समथिंग वेरी कॉमन, पिकल्स, अचार डालना, अचार, मुरब्बा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रूरल इंडस्ट्रीज़. लोग घरों में उसके लिए कोई बड़ा सेटअप उनको नहीं चाहिए होता है. दे जस्ट परचेज द रॉ मटेरियल एंड दे प्रोड्यूस इट देमसेल्व्स, सो दैट डज नॉट नीड आई मीन अ लार्ज वर्क फोर्स. बहुत ज़्यादा ना लोग चाहिए उसके लिए, ना इक्विपमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा, ना कोई मशीनरी चाहिए, और इस तरह की प्रोडक्शन से भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है. स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, सो ऑल दीज विल कम अंडर एग्रो बेस्ड विलेज इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. जैसे आपने देखे होंगे बैम्बू के बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? लाइक यू मस्ट हैव सीन केन बास्केट, अ जनरल अ वेरी कॉमन थिंग. केन बास्केट्स जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो किसी मशीन से बनकर नहीं आती हैं, किसी बड़े बिजनेस हाउस से बनकर नहीं आती हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय विलेजर्स इन विलेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है. जो केन का जो केन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट, और उसका यूज़ करके लोग विलेज इंडस्ट्रीज़ में वो बास्केट्स एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक मैट्स एंड बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. तो वो उस सब का प्रोडक्शन जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, लाइक उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उनके लिए जो ज़रूरत है जो सामान की, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द लोकल फॉरेस्ट. सो वुड प्रोडक्ट्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स, हनी, कॉयर इंडस्ट्री. कॉयर जो यूजुअली कोस्टल एरियाज़ में जो विलेजेस होते हैं, रूरल एरियाज़ जो कोस्टल एरियाज़ में पड़ते हैं, सो वहाँ पर कॉयर इज़ प्रोड्यूस्ड इन एबंडेंस. कॉयर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो कॉयर से भी बहुत सारा सामान वो बनाते हैं. उस सब को कॉयर से बनाते हैं या कॉयर की रिफाइनिंग करके उसको फिर बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं यूज़ होने के लिए. तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी हमारे रूरल इंडस्ट्रीज़ में आएंगी एंड इट कम्स अंडर फॉरेस्ट बेस्ड रूरल इंडस्ट्रीज़. मेकिंग ईटिंग प्लेट्स फ्रॉम लीव्स. आपने देखा होगा पत्तल जिसको हम बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग, and that is very environment friendly also, because otherwise paper plates और ये thermocol की जो हम plate use करते हैं, they are, thermocol is not good for health. उसमें हम गरम अगर कुछ सर्व करते हैं तो the chemicals may get mixed with the food and that makes it not safe for our health. And paper plates or paper cups that we use,
तो उसमें हमें फिर बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को हार्म करना होता है, पेपर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना होता है. सो दिस पेपर प्लेट एंड ये जो हम पार्टीज़ के लिए बनाते हैं लीव से, that is a very environment friendly option for us, and people create really nice articles from the leaves which can be used for eating, for making plates, for making cups, etc. Next is mineral based industry. So under this comes like जो जहाँ पर कोई mineral rich areas हैं वहाँ पर लोकल लेवल पर रूरल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या काम हो सकता है. स्टोन क्रशिंग, सीमेंट इंडस्ट्रीज, रेड ऑक्साइड मेकिंग, वॉल कोटिंग पाउडर्स, ये सब जो छोटे लेवल पर ये सब का प्रोडक्शन होता है वो मिनरल बेस्ड रूरल इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है. नेक्स्ट कम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल में स्पिनिंग, वीविंग, कलरिंग, ब्लीचिंग, जैसे टाई एंड डाई, ये सब जो एक पर्टिकुलर एरियाज स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब रूरल इंडस्ट्रीज़ हमारे विलेज इंडस्ट्रीज़ में आएंगी एंड दे कम अंडर टेक्सटाइल विलेज इंडस्ट्रीज़. इंजीनियरिंग सर्विसेज, ट्रैक्टर्स एंड पंप सेट रिपेयर्स. अब जो वहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही हैं रूरल एरियाज़ में, लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड एरियाज़ में ट्रैक्टर और इस तरह की बहुत सारे ट्यूबवेल और बहुत सारे जो ये इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो लोग ट्रेनिंग लेकर एक वहाँ पर अपने छोटे लेवल की सर्विस इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं, सर्विस एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसमें वो एक ट्रेनिंग लेते हैं और इसका रिपेयर का काम करते हैं. सो दैट वो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, राइट. So that too will come under rural industry, and that makes an engineering or technical service. Handicrafts, many kinds of handicrafts can be produced by rural industries. Number of things can be produced. They can be traditional decorative products, toys, and other forms of handicrafts. जैसे फैब्रिक पे होता है ना, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं जो किसी मशीन से बनकर नहीं आई हैं, बट वो हाथ से बनाते हैं लोग उसको, और वो छोटे लेवल पर ये सब काम होता है. सर्विसेज, देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस. जैसे एक तो हमने यही पढ़ा कि हमारे जो मैकेनिकल इक्विपमेंट जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं उसके रिपेयर का काम लोग सीख कर करना शुरू करते हैं. सो दैट टू विल मेक अ सर्विस एंटरप्राइज. अनदर फॉर्म ऑफ सर्विस एंटरप्राइज मे बी मोबाइल रिपेयर. मोबाइल का हम देख रहे हैं कि इट हैज़ रियली रीच्ड फार ऑफ प्लेसेस. हर कोने में अब इंटरनेट फैसिलिटी और ये सब ऑलरेडी पहुंच चुकी है. तो एवरीवन इवन इन रूरल एरियाज इज़ मोस्टली यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स. तो उसके भी रिपेयर का वर्क सीख कर लोग एक अपना सर्विस एंटरप्राइज का सेटअप कर सकते हैं. एग्रीकल्चर मशीनरी सर्विसिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड these are the kinds of services which may be rendered by the people under this category. So this was about village industries. Let's now see cottage industries. Cottage industries एक बहुत common term है, अक्सर हम सुनते हैं. ये जैसे पिकल और इस तरह के बहुत सारे काम, या हम इवन टेक्सटाइल के फील्ड में भी देखते हैं, लेसेस बनाना और ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की वर्क हमारे आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में. कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? Cottage industry is a form of unorganized industry in which people are engaged in craftsmanship work such as handicraft, pottery, knitting, handloom, etc. ये सारे काम जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, या इवन आप ये पिकल मेकिंग, जैम, ये प्रेजर्व्ड आइटम्स जो होते हैं, इस सब का भी प्रोडक्शन जो है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा. मेनली कॉटेज इंडस्ट्री वो होती हैं जो लोग अपने घर पर ही स्टार्ट कर देते हैं, घर के ही लोग मिलके उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो बहुत बढ़ता है तो फिर उनको थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना होता है अपनी यूनिट को. फिर वो घर से बाहर कुछ जगह एक्वायर करके वहाँ पर अपना ये सेटअप क्रिएट कर सकते हैं. और अगर उनका प्रोडक्शन, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, सपोज़ वो कोई अचार बना रहा है, कोई मुरब्बे बना रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो घर के 2-4 लोग उस काम को कर रहे थे, इफ़ दे आर नॉट एबल टू मीट अप, I mean, if they are not able to produce
and fulfill the demand up to that level, they may involve other people from around. तो उस तरह के सेटअप को हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. They are generally set up at the individual's home or a nearby place where goods and services are produced at home in small amounts and the workers use traditional equipment. कोई मशीनरी, कोई बहुत इसमें पावर का यूज़, ये सब नहीं होता है. ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, जैसे अगर आप पॉटरी का कर रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल आपका जो पॉटर्स व्हील होता है दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द गुड्स. एंड अदर सच वर्क्स आर ऑल्सो देयर विच रिक्वायर लाइक कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप का आइटम है तो वो भी यूजुअली वो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट के यूज़ से होता है. और जब ये काम हम बड़े लेवल पर मशीन्स के यूज़ से करते हैं तो वो फिर ये विलेज इंडस्ट्री हमारी नहीं कराएगी, फिर वो हमारी मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम एंटरप्राइज के लेवल पर पहुंच जाता है. सो दिस वाज अबाउट द मीनिंग and the classification of small enterprises. We'll continue with this topic tomorrow. Thank you and have a nice day.